Hello everyone, this is Nushat here and welcome back to my YouTube channel NK Tutorial. So बच्चों, you know that we are doing exercise 13.2. 13.2, in 1 to 6 question we have already done. 1 to 6 question हम कर चुके हैं. इस वीडियो में we are going to do question number 7. So let's see question number 7. What does it says? देखते हैं question number 7 क्या कहता है. Here telling a batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? Now let's understand the questions first of all. हम पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. Here telling a batch of box है, just like कार्टून टाइप के हमारे पास एक बॉक्स है. उस बॉक्स में 25 बैच है. उस बॉक्स में 25 बॉक्सेस हैं. ओके, 25 बॉक्सेस में 12 बॉटल्स हैं, हो ना. ईच बॉक्स मींस हर बॉक्स में 12 बॉटल्स हैं. अगर हमारे पास सेम बैच और है, अगर इफ देयर इज मोर सेम बैच, ओके, सेम टाइप अगर हमारे पास और बैचेस हैं जिसमें हर बॉक्सेस में 20 बॉटल्स हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितनी होंगी? नंबर ऑफ बॉक्सेस कितनी होंगी? सो हम नंबर ऑफ बॉक्सेस को x सपोज कर लेते हैं. गॉट इट? सो लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस बी x. लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस बी x. गॉट इट? Since it is in inverse proportion, ये inverse proportion में है, so we will do here x1 by x2 is equal to y2 by y1. x1 by x2, this is x, ये x है, and this is y. Okay, this is x1, this is x2, this is y1, and this is y2. x1, x2, y1, y2. Got it? So here x1 by x2 is equal to y2 by y1. 25. And y2 is x2 is x, y2 is 20 and y1 is 12. Now we will do cross multiplication. अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यहाँ 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 20x is equal to 25 into 12. 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, therefore x is equal to 25 into 12 divided by 20. Got it? Now it will go with the table of 5. 5 5s are 25. 5 4s are 20. Once again, 4 1s are 4. 4 3s are 12. We have got here 15. Therefore, how many boxes would be filled? Then your answer will be 15 boxes would be filled. Okay, 20 bottles 15 boxes में fill हो जाएंगे. Therefore, okay, 15 boxes is our answer. 15 boxes हमारा आंसर है. Are you getting this question? Is there any problem? I hope you will be understanding. Now let's come to the next question. अब next question देखते हैं. That is question number 8. Here telling a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे. Here telling एक फैक्ट्री है. ओके, वो फैक्ट्री मीन्स 42 मशीन्स के यूज कर 42 मशीन्स को यूज करते हुए कुछ आर्टिकल्स को बनाती है. तो 42 मशीन्स 63 डेज में किसी आर्टिकल को, कुछ आर्टिकल्स को, कुछ सामान को बना सकते हैं. ओके, 42 मशीन्स मिलकर 63 डेज में किसी काम को करते हैं, किसी काम को करते हैं, मीन्स आर्टिकल्स को बनाते हैं. ओके, देन अगर हमारे पास नंबर ऑफ डेज 54 है, 54 डेज में कितनी, 54 डेज में अगर वही काम को 54 डेज में किया जाता है तो कितनी मशीन की रिक्वायरमेंट होगी? Got it now? Understood? So हम नंबर ऑफ मशीन्स को एक सपोज कर लेते हैं. सबसे पहले इस तरह से बॉक्स बनाएंगे. नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ डेज, एज इट इज 42 मशीन 63 डेज में काम करते हैं. ओके, अगर इसी तरह से 54 मशीन्स हैं तो कितने दिनों में उस आर्टिकल्स को बनाएंगे? Got it now? So हम नंबर ऑफ मशीन को क्या सपोज करेंगे? x. So write down here, let the number of machines be x. Okay, so as you know, it is also in inverse proportion. Inverse proportion है, जितनी ज्यादा मशीन होगी, okay, उतनी कम दिनों में काम कंप्लीट होगा, और जितनी कम मशीन होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा. So it is in inverse proportion. So here x1 by x2 is equal to y2 by y1. So x1 is 42 and x2 is x.
x1 by x2. Yeah, here y2 by y1. Here y2 is 54 and y1 is 63. Now we will do क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ओके, 54 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 इंटू एक्स, एंड 42 को 63 से. ओके, therefore we will write down here x is equal to 42 into 63 divided by 54. 54 से हम इसे डिवाइड करेंगे. Now it will go with the table of 7. 7 is a 54. नहीं, 7 8 नहीं, सॉरी, 8 7 जा 56. किसके टेबल में जाएगा ये? हाँ, 7 6 जा 8 7 जा 52 56. सो हम 2 से कर लेते हैं, नो वरी. ओके, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14. नहीं, 9 के टेबल से चला जाएगा. सो लेट्स सी, 9 के टेबल से हम करेंगे. 9 6 जा 54, 9 6 जा 54. ओके, एंड 9 7 जा 63. व्हाट? वंस अगेन हम 6 के टेबल से 42 को डिवाइड करेंगे. 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42. सो हियर वी गोट हियर 7 into 7. हमारे पास कितना आया? 7 into 7. 7 into 7 is equal to 49. 49. सो नंबर ऑफ मशीन्स कितनी होगी? 49 मशीन्स. ओके, 54 डेज में अगर कोई वर्क कंप्लीट होता है, कोई आर्टिकल कंप्लीट करने के लिए 54 डेज में कोई आर्टिकल्स अगर कंप्लीट करने हैं, उसके लिए हमें कितनी मशीन चाहिए? वी नीड 49 मशीन्स. ओके, उस फैक्ट्री को 49 मशीन चाहिए. अगर वो मीन्स जो आर्टिकल्स बनाने के लिए 54 डेज लगाते हैं, तो उसके लिए कम से कम कितनी मशीन चाहिए? 49 मशीन्स. I hope you will be understanding it. Now let's see the next question. Hello everyone, this is Nushat here and welcome back to my YouTube channel NK Tutorial. So we are doing exercise 13.2. अब हम देखते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9. What the question number 9 says here? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखते हैं. Here telling a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km per hour. How long will it take when the car travels at the speed of 80 km per hour? क्वेश्चंस को सबसे पहले हम समझते हैं. Here telling, you know, destination means मंजिल. मंजिल तक पहुंचने के लिए एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और 2 घंटे में वो पहुंच जाती है. ओके, अगर सेम कार, वही कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो कितने घंटे में, मीन्स कितने टाइम पहुंचने में, डेस्टिनेशन तक पहुंचने में टाइम लगेगा, कितने घंटे में कार पहुंचेगी. ओके, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. वो हमें फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे. सेम टाइम टेकन एंड हियर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है. ओके, सो हियर वी विल डू हियर बॉक्स बनाएंगे like this. We will draw a box. Just look here. 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कार चलती है तो 2 घंटे में डेस्टिनेशन पहुंच जाती है. 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कार चलती है तो 2 घंटे में कार डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है. अगर सेम कार, वही कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो कितने घंटों में अपनी मंजिल तक पहुंचेगी? दैट इज x. हम उसे x सपोज कर लेते हैं. गॉट इट? सो यू नो इट इज ऑल्सो इन इनवर्स प्रोपोर्शन. अगर स्पीड ज्यादा है टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है टाइम ज्यादा लगेगा. सो इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन. सो लेट दी टाइम टेकन बी x. हम टाइम को क्या सपोज करते हैं? x. लेट दी टाइम बी x. ओके, so here since it is varying, ये inverse proportion में है, so we'll do x1 by x2 is equal to y2 by y1. Here 2 by x1 by x2, this is x, this is y, x1 x2, y1 y2. So 2 by x1 by x2 is equal to y2 by y1. y2 is 80 and y1 is 60. Now we will do क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 80 को x से मल्टीप्लाई करेंगे. 80 इंटू एक्स 80x, 60 इंटू
Therefore, x is equal to 60 into 2 divided by 80. Okay. Now this 0 will go with this 0. ये 0 को हम इस 0 से डिवाइड करेंगे. Now 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 by 2. 3 by 2 means what? 1. अगर हम 2 को इससे 3 से डिवाइड करेंगे 1 इंटीजर 1 by 2 आएगा 1 by 5. 2 1 जा 2 1. Okay. 2 1 जा 2. We get here 1. Sorry. Okay. It means 1 इंटीजर 1 by 2. 1.5 hour. हम इसे कर सकते हैं 1.5 hour और 1.5 hour. अगर हम डेसिमल में करना चाहेंगे तो डेसिमल में कर सकते हैं. So 1.5 hours. Okay. The car will take 1.5 hour to reach to its destination. अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कार को एक 1.5 hour डिस्टेंस कवर मीन्स 1.5 hour का टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा. ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंडिंग इट. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन.